Okay. So that is the day two of your customized course. So before going to start the day two session, actually, let me ask you some few questions. What we are So, understanding in our last session? Can you just explain? yesterday class completed what is virtual machine, AR, VR, Okay. What is AR? for arrangement reality. Mm-hmm. It is virtual properties come to present reality, present scenario. I think. Yes, right. So And to what is VR? actually it is nothing but VR stand for virtual reality. Mm-hmm. It is one person entering user. I think one user. Key, just for example, I am in entering virtual machine, a virtual world Yes. is called VR. I think. Okay. So let me just quickly recap our last session. In our last session, we are discussing about what is VR, what is AR. AR is nothing but called augmented reality. VR is nothing but called virtual reality. Whenever we are entering to a Hmm. virtual world, this is called VR. Whenever virtual world objects are entered to our present world, this is called AR, augmented reality, right? Yes, yes. It Okay. is recording or not? Yeah, is it recording? And you get the record. Okay. Okay. So Hmm. in the day two session, actually last time I am saying that we are now deep and dive into a single topic. Like we are now deep and dive to fundamentals of networking. Okay. So before going to discuss what is the definition of network, what is the fundamental of network, let's understand some network concept. Like whenever we are studying network, there are mainly three concepts we should learn. First one is network, another one is networking, third one is networker. Okay. Are you hear about these Hmm. terms? Network, networking, networker. Yes, yes, yes. Okay. What Yes. is network, Vishnu? What is network? Speak up. Currently, I forget this Okay. definition, but I So know. But network is nothing but whenever we are connecting multiple multiple devices. multiple IT equipments. Okay. If I Hmm. am talking about whenever I am connecting multiple network devices, that means you are actually saying routers, switches, and servers are actually network. No, network is anything like you are connecting your mobile, your laptops, your desktops, your printer. These are also network device part. So whenever we are connecting multiple IT equipments, and whenever we are talking about IT equipments, inside IT equipments, all things are covered like your server, your router, your switch, your SAN switch, your printer, your desktop, your laptop, your mobile, your tablet, all things are covered. Got it? Hmm. Yes. So Got it. what is network? Whenever we are connecting multiple IT equipments is called network. That's it. That is called network. What is network? The process of connecting Clear. multiple IT equipments is called network. Okay. Clear? Then Clear. Clear. why we are connecting multiple IT equipments? Let's say there was a computer. I am connecting these two computers. Why I am connecting? To communicate each other Why? Why? through Why they are communicating? sharing data, download data. Yes, let That's me why correct. using. Let me correct. We are connecting multiple IT resources to sharing their resources in between multiple devices. Let's say मेरे पास एक प्रिंटर था, उस प्रिंटर को चलाने के लिए मेरे पास मल्टीपल यूजर थे, तो मैंने क्या किया, हर एक यूजर को सेपरेटली कम्युनिकेशन ना कराकर मैंने इस प्रिंटर को नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया और ये सारे डिवाइस सारे यूजर्स मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है. So now all users are connected to this printer via network. ओके. सो Hmm. अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ ना आपके लिए, सो व्हाट इज नेटवर्क? द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल आईटी इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड नेटवर्क. एंड व्हाट इज नेटवर्किंग?
आफ्टर नेटवर्क, जैसे मैंने कहा मैं कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, केबल से मैंने कंप्यूटर का कनेक्ट कर दिया, राइट। राइट। मेरे पास इथरनेट की केबल थी, मैंने यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब तक मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ ना, दिस पार्ट, कनेक्शन पार्ट इज कॉल्ड नेटवर्क। देखो नेटवर्क में दो चीजें होती है, एक तो होती है पैसिव की काम होती है, दूसरा होता है एक्टिव का काम। ओके। ठीक है। पैसिव काम इन द सेंस जहां पे आपकी फिजिकल पावर यूज हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी, आपकी जो फुल बॉडी है, वो बॉडी यूटिलाइज कर रहा है, कहीं पे केबल डाल रहे हो आप, कहीं पे सर्वर उठा के लेके रख रहे हो, दीज आर कॉल्ड फिजिकल वर्क। व्हेनेवर आवर फुल बॉडी इज वर्किंग, दैट इज कॉल्ड physical work, पैसिव। that is also called passive task. But whenever we're talking about active part in networking in any domain, active part in the sense you are not, your full body is not working, your brain is actually working. Got it? Like configuration, server login, remote desktop, these are like you are providing service in active part. But whenever we are talking passive part, we are doing some physical task. फिजिकल वर्क। राइट। सो मैंने दोनों ओके। सिस्टम के बीच केबल को कनेक्ट किया, इज इट एक्टिव वर्क और पैसिव वर्क? पैसिव। यस, इट इज पैसिव वर्क। तो ये केबल कनेक्शन जब तक मैं कर रहा था, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। Okay. Whenever we are connecting cables in between multiple devices, multiple networking devices, multiple IT equipment, this is called network. But नेटवर्क जैसे ही मैंने केवल दोनों के बीच कनेक्शन कर दिया, मुझे सेकंड फेज में क्या करना पड़ेगा, मुझे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसको लेट्स से 10.1 दे रहा हूँ, इसको 10.2 दूंगा, मुझे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राइट। आफ्टर दैट राइट। मुझे इसकी रिसोर्सेज को यहाँ से शेयर करना पड़ेगा, जैसे एक फोल्डर मैंने इस पे बनाया, इस फोल्डर को शेयर करूंगा, यहाँ से वो एक्सेस कर लेगा। इज इट राइट? राइट। तो लेकिन ये जो आईपी दे रहा हूँ, फोल्डर शेयर कर रहा हूँ, वो किसके पार्ट है, एक्टिव या पैसिव के? पैसिव। यस, एक्टिव। These are active parts just because we are not doing any physical task, we are just moving our mouse and right clicking our mouse and provide IP address or share the folder, right? राइट। So whenever we are talking about network, what is network? Let me remember myself, but also you remember that what is network. The communication or the connection in between multiple IT equipments is called network. The connection, this is not the communication, this is the connection in between multiple IT equipments is called network. And what is networking? To sharing resources in between multiple IT equipments. That means मेरे पास एक प्रिंटर है, प्रिंटर भी एक आईटी की इक्विपमेंट्स है, राइट। प्रिंटर एक आईटी की इक्विपमेंट है ना। मेरे पास एक डेस्कटॉप है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। और फिर मैंने इस सिस्टम से एक प्रिंट कमांड दिया इस प्रिंटर को, दिस इज कॉल्ड योर नेटवर्किंग। मैंने प्रिंटर को कनेक्ट किया, दिस इज द नेटवर्क। नेटवर्किंग क्या है, मैंने यहाँ से प्रिंट दिया और यहाँ से प्रिंट निकल गया। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ये जो रिसोर्स था, इसको मैंने यूटिलाइज किया, कैसे, मैंने प्रिंट देके वहां से प्रिंट निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क प्लस नेटवर्किंग इज कॉल्ड इंटरनेट, यू कैन से। दोनों को मिलाने के बाद एक बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हो। लेट मी टोल्ड यू अगेन, मैं जब नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क इज नथिंग बट द कनेक्शन पार्ट। व्हेनेवर वी आर कनेक्टिंग मल्टीपल आईटी रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्क। ओके। But whenever we are sharing resources in between these IT resources, let's say यहाँ पे एक IT resource है, यहाँ पे एक IT resource है, we are connecting these two IT resources via cable, via Wi-Fi, कुछ भी हो जाए, this connection process is called network. But whenever we are sharing resources in between these IT resources, this is called networking. नेटवर्किंग। बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखो, इंटरव्यू में अगर 10 इंटरव्यू की बात करूं, 5 इंटरव्यू में क्वेश्चन आती ही आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। जैसे तो कि आपको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब, यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, नेटवर्किंग इज द पैसिव पार्ट, नेटवर्किंग इज द एक्टिव पार्ट। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, लेकिन एक्टिव पैसिव बोलने से नहीं होगा, आपको पूरी एक वन लाइन नहीं नहीं। डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। आप ऐसे बता सकते हो, whenever we are connecting multiple IT resources, this is called network, it is belongs to passive work or passive task. And whenever we are sharing resources in between multiple IT resources or also called active part, this is called networking. You have to create a definition. आप पहले चीजों को समझो और अपने से डेफिनेशन बताओ, फिर मुझे वो डेफिनेशन बताओ, मैं बताऊंगा डेफिनेशन सही है गलत। तो और एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, व्हाट इज नेटवर्क? Whenever we are connecting multiple IT resources, this is called network.
And whenever we are sharing resources in between these IT resources, this is called networking. Got it? Networking definition. Networking. Whenever we are sharing resources in between multiple IT equipments or IT resources, this is called networking. देखो, कॉन्सेप्ट आपकी वही है, आप जो पहले कह रहे थे ना, द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड हम्म नेटवर्क, राइट? कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क, राइट? आप सही कह रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे डिवाइस कौन सी टाइप की डिवाइस है। डिवाइस तो कुछ भी हो हम्म सकता है ना, डिवाइस तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक डिवाइस है ना, उसमें मैक एड्रेस है ना, उसमें कुछ है, कोई भी डिवाइस कुछ भी उसके अंदर नहीं है ना, उसके आईपी एड्रेस है, उसका कुछ नहीं है उसके हम्म अंदर, उसको कुछ हम दे भी नहीं सकते उसको। फिर भी मैं उसको डिवाइस हम्म कहता हूँ, क्या वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो नेटवर्क का पार्ट कैसे हुआ? नहीं हो सकता वो नेटवर्क का पार्ट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कैसे बनाई, द कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल आईटी रिसोर्सेज। एंड कहीं पे भी आप आईटी रिसोर्स देखोगे ना, आईटी के अंदर वो चीजें यूज हो रही है, मतलब उसके अंदर एक आईपी एड्रेस होगा, एक मैक एड्रेस होगा, या फिर एक कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा उसके अंदर, राइट? द कनेक्शन इन राइट बिटवीन मल्टीपल आईटी रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्क। ओके ओके, मैं नेटवर्क क्यों करता हूँ? तो शेयरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइनल होगा, उसके बाद आप मुझे बताना, अगर समझ नहीं पा रहे हो फिर से बताएंगे आप, ठीक है? सो व्हाट इज नेटवर्क? द कनेक्शन इन बिटवीन मल्टीपल आईटी रिसोर्सेज, और यू कैन से आईटी इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स क्या होता है? डिवाइस को जो कहते हो ना, इक्विपमेंट्स है यस वही यस सेम डिवाइस है। या फिर यहाँ पे इक्विपमेंट्स अगर हम नहीं बोल पा रहे हो तो ऐसे बोल दो, कनेक्शन इन बिटवीन मल्टीपल आईटी डिवाइसेस। लेकिन आईटी हम्म रखना, क्यों आईटी रखना? क्योंकि हम्म डिवाइस तो बहुत तरीके की होती है। द कनेक्शन इन बिटवीन मल्टीपल आईटी डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क, एंड द शेयरिंग रिसोर्सेज इन बिटवीन these आईटी डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। गॉट इट? in between sharing data or resources is called networking. देखो और एक बार देखो, कभी भी डेफिनेशन आप बोल रहे हो ना, डेफिनेशन शुड बी क्लियर, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए आपका। देखो मैं लास्ट बता रहा हूँ एक, द हम्म कनेक्शन इन बिटवीन मल्टीपल आईटी डिवाइसेस is called network. What is network? The connection in between multiple IT devices is called network. Right? Clear बिल्कुल ये हो गया हम्म आपका। बताओ हम्म नेटवर्क क्या होता है? clear बताओ the क्या होता connection है? in between multi IT devices or IT equipment is called network. Yes. And what is networking? To sharing resources in between multiple IT devices is called networking. What is networking? To sharing resources in between multiple IT devices is called networking. Got it? To sharing resource the sharing resources in between multi IT devices. Multiple. This is multiple IT devices is called networking. Clear हुआ? multi नोट्स भी बना रहा हूँ ना, सो इसलिए टाइम थोड़ा जा नहीं रहा नहीं, है यहाँ नोट्स पे। बनाने की आपको जरूरत नहीं है, हम अपने नोट्स ठीक शेयर है। कर देंगे। नोट बनाने की, ये नोट बनाने के प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आईटी है। आईटी की आईटी में आपको समझना है, ना कि नोट ठीक बनानी है। ठीक है? तो अभी मुझे बताओ व्हाट इज नेटवर्किंग? ठीक network by the help of sharing resourcing in between आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है। by the help of networking to sharing resourcing in between multiple IT device or equipment. यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? Networking. व्हाट इज नेटवर्क? Network by the help of network to connect in between multiple IT equipment is called network. यस। एंड अगर मैं बात करूं आईटी इक्विपमेंट, व्हाट इज आईटी इक्विपमेंट?
हेलो। राउटर, स्विच, प्रिंटर, ओके, आप राउटर स्विच ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे फोन। भी कह सकते हो, आप राउटर स्विच ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, आईटी इक्विपमेंट्स इन द सेंस हम्म एनी डिवाइस which have the capabilities to share their resource with other। मतलब आईटी डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर वो पावर होता है, या फिर वो क्षमता होती है, वो अपनी चीजों को दूसरे के साथ शेयर कर पाए। दिस इज कॉल्ड आईटी इक्विपमेंट्स, नेटवर्क। राइट। ऑल्सो हैविंग, यहाँ पे अगर आपको हम्म बनानी है बढ़िया से, ऑल्सो हैविंग ए हम्म यूनिक आइडेंटिफायर लाइक मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। गॉट इट। नॉर्मली इंटरव्यूअर आपको कभी नहीं पूछेगा आईटी इक्विपमेंट्स क्या होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए आईटी इक्विपमेंट्स इज नथिंग बट लाइक आवर प्रिंटर, सर्वर, these are our हम्म नेटवर्क डिवाइस, also आईटी डिवाइसेस। राउटर स्विच हमारी नेटवर्क डिवाइस भी है, एज वेल एज हमारी आईटी इक्विपमेंट्स भी है। और उसकी अगर डेफिनेशन कोई पूछ रहा है, so any IT devices या फिर any devices who have the capabilities of sharing resources with other and also have a unique identifier like IP address and MAC address। Got it? हम्म आगे चले। ओके। बिल्कुल क्लियर हो, ये हम्म। दो टर्म बिल्कुल क्लियर हो गया ना आपका? हाँ हाँ, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग यस। आगे चलते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं नेटवर्कर क्या है। जैसा हमारी प्लेटफॉर्म की भी नाम है हम्म नेटवर्कर। बेसिकली नेटवर्कर है क्या? देखो, हम्म ये जो दोनों सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आपस में कुछ शेयर किया डेटा को, इस सबको करने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई एक बंदा चाहिए, हम्म राइट। कोई ना कोई बंदा तो इसे कर रहा होगा ना, हम्म मे भी वो इंजीनियर भी हो सकता है, इंजीनियर ना भी हो, कोई ना कोई एक बंदा चाहिए जो नेटवर्क हम्म ये बना रहा है। ये छोटी छोटी बात हम्म हम कर रहे हैं, जैसे दोनों सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया, इट इज अ वेरी स्मॉल स्केल नेटवर्क। लेकिन एक कंपनी की नेटवर्क की अगर हम्म बात करूं, वहां पे मल्टीपल स्विचेस होते हैं, मल्टीपल राउटर होते हैं, मल्टीपल फायरवॉल होते हैं। तो वो सारे डिवाइस को कोई माउंट करता है, कोई कॉन्फ़िगर करता है, कोई मेंटेन करता है, राइट। देयर वाज अ पर्सन इन नेटवर्क, देयर इज ए हम्म पर्सन इन ए ऑर्गेनाइजेशन हु इज डेडिकेटेड फॉर नेटवर्क। आपकी कंपनी में कोई ना कोई एक हम्म नेटवर्क इंजीनियर होगा, राइट। उसका हम्म काम क्या हम्म रहता है? डे टू डे में हम्म वो नेटवर्क मेंटेन करता है, नेटवर्क में कोई इशू ना है। सो हम्म दिस गाय इज नोन एज नेटवर्कर, द पर्सन हम्म हम्म हु क्रिएट डिस्कनेक्ट हो गया। एंड मेंटेन द नेटवर्क। ओके, मतलब एक ऐसा बंदा जो पूरी नेटवर्क को हम्म बनाता है और उस नेटवर्क को मेंटेनेंस करता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? नेटवर्कर कहते हैं, राइट। जैसे आपने यस। देखा होगा, रेलवे में एक इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर। उनका काम क्या रहता है? वो रेलवे जो ट्रेन होती है उसे मेंटेनेंस करते हैं, उसके अंदर कहीं खराबी आ रही है, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे काम वो करते हैं। या फिर अगर कहीं प्रोडक्शन बेस्ड हम्म कंपनी में आप काम करते हो ना, वहां पे देखना छुट्टियों के दिन मेंटेनेंस इंजीनियर आते हैं। वो क्या करते हैं? पूरी जो एनवायरमेंट होती है उसमें कोई भी कुछ इशू है वो सारे सॉल्व करते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर। सो लाइक दैट, हम्म नेटवर्किंग में कोई शट इशू आ डाउन। रहा है, कहीं पे कुछ करना है, तो वो कौन करता है? नेटवर्कर करता है। अनदर नेम ऑफ नेटवर्कर, नेटवर्क इंजीनियर। आप उसे टेक्निकली नेटवर्कर हम्म बोला जाता है, और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में उसे नेटवर्क इंजीनियर बोला जाता है। इन दोनों का काम, ये फिर इन बंदों की काम क्या होती है? नेटवर्क को क्रिएट करना, नेटवर्क को मेंटेन करना। गॉट इट? हम्म क्लियर होना है तीन टर्म बिल्कुल। यस यस। आगे चलते हैं। व्हाट इज नेटवर्कर और हु इज नेटवर्कर? नेटवर्क, नेटवर्क इंजीनियर। ओके, It व्हाट is ही इज और basically it is basically work network may create or maintain if you are facing any issue in organization to solve uh, this issue. ओके, आप ऐसे कह सकते हो, द सॉरी, the person who create
एंड मेंटेन द नेटवर्क। ये है एक सिंगल सिंपल लाइन डेफिनेशन। द पर्सन हु क्रिएट एंड मेंटेन द नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्कर। हम्म। राइट। ओके। अभी हम आगे ओके। चलते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं बेसिकली क्या है क्या मैं कह रहा हूँ। देखो आपने बहुत टर्म सुना होगा, अगर आप एक इंजीनियर हो कहीं पे या फिर आपने पढ़ाई भी कर रखी है इंजीनियर की, अगर आपने एक टर्म सुना होगा इंटरनेट। डे टू डे लाइफ में भी आपने इसे दिन में तो कम से कम 100 बार सुनते ही होगे। नेटवर्क स्लो हो गया, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, इंटरनेट में कोई नया वीडियो आया हुआ है, इंटरनेट में गाना चल रहा है, इंटरनेट से यूट्यूब खोल दे। तो इंटरनेट आप सुनते हो ना, हम्म। ये वर्ड आप सुनते हो ना डे टू डे में। हाँ हाँ। हाँ। तो इंटरनेट क्या है, कुछ पता है इंटरनेट है जी। क्या? क्या है इंटरनेट? इंटरनेट थ्रू एक्सेस वेबसाइट। नहीं इट मैं इज वो नहीं पूछ रहा बट इट इंटरनेट इज का वर्क। मतलब क्या। आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट यू आर डूइंग बाय यूजिंग इंटरनेट, आई एम सेइंग एक्चुअली व्हाट इज इंटरनेट। देखो थोड़ी सी हम इंटरनेट को समझते हैं। जो आप कहते हो ना इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स, वो थोड़ी सी आज हम समझते हैं। देखो लेट्स से आप एक हम्म कंपनी में काम करते हो, ये है आपकी कंपनी, कंपनी का नाम है लेट्स से आप होंडा में हम्म काम करते हो, जैसे आपने बताया था HMSI, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इस कंपनी के अंदर आपने एक खुद की हम्म नेटवर्क होगा, लेट्स से ये आपकी नेटवर्क डिवाइसेस है, ये सारे कनेक्ट है, आपकी एक खुद की एक नेटवर्क है, हम्म राइट। आपकी कंपनी के अंदर नेटवर्क है या नहीं है? है। हाँ। तो ऐसे ही दूसरा एक कंपनी होगा, लेट्स से हीरो मोटर्स एक कंपनी है, उसके अंदर आपने वो अपना कुछ खुद का हम्म नेटवर्क बना के रखा होगा। वैसे सेम और एक नेटवर्क हो हम्म कंपनी है, लेट्स से कंपनी का नाम है मेरा TVS। ओके, मैं प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी लेता हूँ। हम्म इसके अंदर उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना के रखा होगा। वैसे ही सेम लेके जाओ टेक हम्म महिंद्रा, उन्होंने अपना भी एक नेटवर्क बना के हम्म रखा होगा। हम्म ओके। सो ऐसे मैं चार एग्जांपल ले रहा हूँ, आप एज्यूम करके ये चलो कि देश भर में जितने भी कंपनी है अपना खुद का एक नेटवर्क वो बना के रखे होंगे, राइट। हम्म। और आपकी कंपनी में राइट। कहीं ना हम्म कहीं देखना, या फिर आपको हम्म नहीं पता तो पूछना, देखना इंटरनेट से कहीं ना कहीं कनेक्शन आ रखी होगी, भाई वो जियो की लिंक हो, एयरटेल की लिंक हो, या फिर दूसरी कोई कंपनी की लिंक हो। आया है किसी से? हम्म। हाँ। तो हाँ हाँ बेसिकली हाँ। आया है। वो जिससे आता है वो कौन देता है, मेरी ISP देता है। ISP कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बारे में हम पूरी क्लास करेंगे, लेकिन अभी समझो ये एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी हम्म होता है जो आपको इंटरनेट देता है। इंटरनेट क्या है वो भी अभी हम बताते हैं हम्म आपको। जैसे इस कंपनी ने होंडा से, हम्म। इस होंडा वालों ने क्या किया, इस ISP से कनेक्शन लिया। लेट्स से ISP आपका है जियो, जियो से इन्होंने क्या किया, अपनी एक कनेक्शन लिया, जी। ठीक है। और हम्म वैसे ही एक दूसरी एक कंट्री है, लेट्स हम्म से कंट्री है आपकी यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके पास से हम्म जितने भी है ना, वो हम्म जितने भी यूके की जितने भी नेटवर्क्स है या फिर जितने भी कंपनी है, उन्होंने भी हम्म जियो से ही कनेक्शन लिया है, फिर दूसरी कोई ISP से कनेक्शन लिया है। लेट्स से उन्होंने लिया है एयरटेल से ISP कनेक्शन लिया है, किसने? यूएस वालों ने, ठीक है। मैं एक ISP ले रहा हूँ, आप हम्म मल्टीपल ISP लेके चल सकते हो। तो ये सारे ISP क्या होते हैं, अपने आप से हम्म कनेक्ट होते हैं। जैसे और एक ISP है, लेट्स से टाटा है, टाटा से हीरो ने अपनी कनेक्शन ले ली है। वैसे लेट्स से BSNL है, BSNL से TVS ने अपनी कनेक्शन ले रखा है। लेट्स से आपके पास दूसरा VI है, VI से लेट्स से टेक महिंद्रा ने अपनी कनेक्शन ले रखी है। और ये सारे ISP ना अपने आप से कनेक्ट रहते हैं, हम्म सारे टाटा जियो से रहता है, जियो वोडाफोन से रहता है, सब आपस हम्म में कनेक्टेड रहते हैं। So हम्म this is a vast kind of network, and this is nothing but this is your net internet. This is nothing but this is your internet. Internet क्या होता है? Combination of multiple intranet. This is your private network, right? राइट। And this is Hero's private network, and this is TVS private network, and this is Mahindra's private network, and this is UK's company private network. The combination of this private network is also called internet. ओके। अभी थोड़ी सी और इसे अच्छे से समझेंगे कैसे होता है, कैसे ये सारे काम करते हैं। ये बस मैं एक इंट्रो दे रहा था ताकि आपको समझ आए आगे के टॉपिक में क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे के टॉपिक अगर आपको मैं बताऊं हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, थोड़ी सी आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसमें। लेट्स गो अहेड।
अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे मैंने इंटरनेट की बात की, इंटरनेट के अंदर आपको पता है हम्म मल्टीपल देश आपस में कनेक्टेड है, मल्टीपल पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है भाया इंटरनेट। इंटरनेट नहीं है तो कोई देश अपने इंडिया से हम्म कनेक्टेड नहीं रह सकता, या फिर कोई किसी से कनेक्टेड नहीं रह सकता। वो सारे कनेक्टेड कैसे रहते हैं? भाया ऑप्टिकल सी केबल, जिसको हम कहते हैं क्या, सी केबल भी कहते हैं या फिर सबमरीन केबल भी कहते हैं। ये जैसे आप देख सकते हो, ये पूरी दुनिया की मैप यहाँ पे बनी हम्म हुई है। ओके, देखो ये जो केबल्स दिख रहे हैं ना, जो तार आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में तार है। ये कौन सी तार है? ऑप्टिकल फाइबर हम्म की केबल है। जो हम्म ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, उसकी एक हाई एंड केबल आती है जो पानी के अंदर भी हम्म सरवाइव कर सकता है, वो वाली केबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये देखो पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है हम्म जाल के जैसे। ये सारे आपस में कनेक्टेड है भाया ऑप्टिकल फाइबर हम्म केबल। जैसे इंडिया, इंडिया के पास ऐसे 10,000 सर्वर है, तो वो 10,000 सर्वर अमेरिका के साथ कनेक्ट होंगे, हम्म उसकी सर्वर के साथ, सब आपस में कनेक्टेड है भाया ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, इसमें थोड़ी सी हम हम्म अपनी इंडिया को भी ढूंढते हैं। लेट्स गो एंड सर्च फॉर इंडिया। इफ यू गो हियर यू कैन चेक इंडिया, दिस इज आवर इंडिया। इंडिया में बेसिकली देखो ये एक सी केबल आ रही है, कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है ये सी केबल? इंडियन एशिया एक्सप्रेसवे, राइट। ये कंपनी ने इस केबल को डाला है। इस केबल के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पे पूरी डिटेल्स देगा। ये जो केबल की लेंथ है ना, ये जो कंपनी है इंडिया एक्सप्रेस, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इसने 5,791 किलोमीटर की एक फाइबर डाली है इसके अंदर, सी के अंदर, या फिर आप कह सकते हो समुद्र। वो समंदर के अंदर, समंदर सी के के अंदर अंदर। इसने, हाँ, 5,791 किलोमीटर की इसने ऑप्टिकल फाइबर डाली है। ओनर कौन है इस कंपनी का? चाइना मोबाइल हम्म एंड रिलायंस जियो, जो हमारी जियो कॉर्पोरेशन है वो इसकी है। ठीक है, वैसे ही दूसरे को यहाँ पे इसके ऊपर हम्म क्लिक करोगे तो सेम कंपनी ने इस पे फिर से डाला है और एक केबल, जिसकी लेंथ क्या है, लेट्स गो एंड चेक। इसकी भी लेंथ सेम ही है, 5,791। अभी दूसरा ये देखो, दूसरा आ रहा है किससे, ये किसकी है, या फिर इसको देखो, ये आती है हमारी दूसरी कंपनी, ये, इसने कितना किया है किलोमीटर, ठीक है। ये एक दूसरी कंपनी है जिसने कहाँ से लेके कहाँ तक केबल डाला है। देखो मलेशिया से इसने केबल डालना शुरू किया, भाया कनेक्टिंग योर वेव बंगल एंड योर आवर पाकिस्तान एंड यूरोपियन इजिप्ट एंड तुर्कीस एंड फ्रांस, इन दोनों के बीच में इन्होंने केबल डाला। 20,000 किलोमीटर की इन्होंने केबल डाली है। ओके, सो पूरी दुनिया कैसे कनेक्टेड है भाया, हम्म केबल्स कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कि इंटरनेट कोई चीज है, इंटरनेट कोई चीज नहीं है। जैसे यहाँ पे लेट्स से मेरे पास यहाँ पे क्या है, इटाली है, इटाली में कोई एक सर्वर लगा हुआ है, राइट, इटाली हम्म में एक सर्वर है। आप मान के चलो इटाली में एक हम्म नॉर्मल सी सर्वर है। हम्म उस सर्वर के अंदर 2,000 फोटो है। उस फोटो को मैं इंडिया में बैठ के एक्सेस कर रहा हूँ। वो फोटो आ कैसे रहा है मेरे पास? भाया दिस केबल आ रहा है। और वो जो केबल डालने की पैसा ना, हम बेसिकली रिचार्ज की मदद से देते हैं। हम जो जियो की रिचार्ज करते हैं, जियो की हम कहते हैं 1,000 की मैंने जियो की रिचार्ज की है, 3 महीने अभी बिंदास चलाऊंगा। तो जो 1,000 हम देते हैं ना, किसको देते हैं? जियो को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जियो ने सी के अंदर केबल डाला है, और उस केबल की मेंटेनेंस भी आती है और उस केबल की कॉस्टिंग भी आती है। सो वी आर नॉट पेड फॉर दिस इमेज। ये जो इमेज यहाँ से मैं रिट्रीव हम्म कर रहा हूँ इंडिया में बैठ के, हम इमेज के लिए पैसा नहीं दे रहे। हम किस चीज के लिए पैसा दे रहे हैं? ये केबल और इस केबल की मेंटेनेंस के लिए हम पैसा देते हैं, राइट। हम्म समझ हम्म गए आप क्या मैं कहना चाहता हूँ? सो अभी हमारी जो टॉपिक चल रही थी, हमारी टॉपिक चल रही थी हाँ इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज नथिंग इंटरनेट। बट कॉम्बिनेशन हम्म ऑफ मल्टीपल प्राइवेट नेटवर्क। आपने वो टर्म सुना होगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट। ओके, व्हाट इज द हम्म डिफरेंस in between this theater? Can you explain? ये तो समझ में अंडरस्टैंड आ गया था। इंटरनेट, तो इंटरनेट ही बता दो। इंटरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड यस, इंटरनेट। यस, इंटरनेट इज द इंटरनेट, अगर अच्छे से डेफिनेशन बनना होगा, इंटरनेट इज नथिंग बट द ग्लोबल नेटवर्क। ओके, दुनिया में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट ही है। दिस इज द ग्लोबल नेटवर्क, और यू कैन से जायंट नेटवर्क। सबसे हम्म बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है।
मैंने अभी आपको दिखाया ना वो जाल कैसे है केबल की मदद से। सो इतना बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल इंटरनेट और यू कैन से इंटरनेट। ओके, सो इंटरनेट कैसे बना, जैसे अभी फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेट्स टेक दिस पेन। जैसे ये मेरी इटाली है, इटाली के पास अपना कुछ सर्वर होगा। इटाली वालों ने क्या किया, अपनी सर्वर के साथ हम्म केबल कनेक्ट करके आगे छोड़ दिया, वो केबल कनेक्ट होते होते दूसरी दूसरी कंट्री को इंडिया से आके कनेक्ट हो गया। सो इटाली की तो ये खुद की प्राइवेट नेटवर्क है ना, हम्म और इंडिया की ये अपनी प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन दोनों हम्म कनेक्टेड कैसे हैं, भाया दिस केबल। तो मैं आपको यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको सिंपल सा यही कहना चाहता हूँ। सो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट इज द पब्लिक नेटवर्क, कोई भी इसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जो इंटरनेट होता है, दिस इज योर प्राइवेट वन। इंटरनेट होता है आपके प्राइवेट वन, जिसको आप अपने अंदर ही आप तक ही सीमित है वो नेटवर्क। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, राइट, उस कंपनी का लार्ज नाम लेट्स से होंडा, आप होंडा में काम करते हो, राइट। हम्म तो आप होंडा में जैसे काम करते हो, होंडा के अंदर खुद अपना होंडा का बनाया हुआ कुछ पोर्टल्स होंगे। हम्म ओके, उस पोर्टल को आप अपनी हम्म मोबाइल से या लैपटॉप है से खोलने की कोशिश करो, वो नहीं खुलेंगे। ओके, हम्म होंडा की कोई एक प्राइवेट जो पोर्टल है, उसे आप अपनी लैपटॉप, अपनी जो अभी जिस लैपटॉप में आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर जिस मोबाइल आप चला रहे हो ना, उससे एक्सेस करने की कोशिश करो, वो नहीं खुलेंगे। लेकिन सेम टाइम पे होंडा की हम्म जो डोमेन वाले लैपटॉप होंगे, उससे अगर आप रन करोगे वो वाली यूआरएल, वो खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे, क्योंकि हाँ होंडा खुल के जाएगा अंदर एक प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है, और वो जो यूआरएल है ना आपका, वो प्राइवेट नेटवर्क तक ही सीमित है। हम्म ओके, एवरी कंपनी, कितना भी बड़ा हम्म कंपनी हो, कितना भी छोटा कंपनी हो, दे हैव टू पार्ट ऑफ नेटवर्क। आपकी दो टाइप की नेटवर्क उनके अंदर होती है, एक होती है इंट्रानेट, एक होती है इंटरनेट। और ये दोनों हम्म इंटरनेट और इंटरनेट जहां कनेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं डेटा सेंटर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म आपकी जो आईएसपी से केबल आ रखी है, एयरटेल से हो या फिर जियो से हो, वो आपके डेटा सेंटर में कहीं कोर स्विच हम्म लगा होगा या राउटर लगा होगा, उसके साथ कनेक्टेड होगा, हाँ राइट। है हाँ, सो मतलब हम्म डेटा सेंटर एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर मेरी प्राइवेट नेटवर्क भी है, मतलब मेरी सर्वर्स भी है, और मेरी इंटरनेट भी है, हम्म राइट। लेकिन मैंने जैसे कहा, इंटरनेट इज द पब्लिक नेटवर्क, मतलब इसमें आप कुछ भी चला सकते हो। अभी मैं अपनी मोबाइल में यूट्यूब भी चला सकता हूँ, लेकिन वही सेम इंटरनेट जब मेरी हम्म कंपनी तक जाती है, उसके अंदर मैं यूट्यूब नहीं चला पाता, या फिर फेसबुक नहीं चला हम्म पाता। क्यों नहीं चला नहीं पाता, चलेगा क्योंकि वहां उसके अंदर क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पॉलिसी होती है। बेसिकली जब इंटरनेट, अगर हम्म नॉर्मली इंटरनेट की बात करो ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा वायरस, बहुत ज्यादा वो कह सकते हो आप, मिसलेनियस थिंग होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे फालतू चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगे। कहीं यूट्यूब वीडियो भी चल सकता है, कुछ अलग भी मिल चल सकता है। लेकिन जब वही सेम इंटरनेट जब आपकी कंपनी में जाएगा ना, वहां पे आप बनाओगे पॉलिसी, उस पॉलिसी बेस में आप ट्रैफिक को आगे दोगे आपकी कंपनी के यूजर के पास। समझ गए। ये पॉलिसी कौन बनाता है मतलब पॉलिसी बनाने के लिए देखो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे सर्वर है, आपकी सर्वर के अंदर पॉलिसी बनाता है सर्वर एडमिन, नेटवर्क के अंदर पॉलिसी बनाता है हम्म नेटवर्क एडमिन, एंड फायरवॉल अभी जो हम्म लेटेस्ट जनरेशन चल रही है ना, इसके अंदर हम पॉलिसी एक ही जगह बनाते हैं, जिसको हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल के अंदर मैं हम्म बेसिकली पॉलिसी बना देता हूँ। जैसे मेरी यूट्यूब की जो सर्वर की आईपी है, वो है लेट्स से 1.2.2.2। मैं फायरवॉल पे जाकर क्या बोलूंगा, हम्म अगर कोई भी यूजर 1.2.2.2 को एक्सेस करेगा तो उसके ट्रैफिक ड्रॉप कर दो। तो आपकी कंपनी के अंदर हम्म कोई भी बंदा अगर इस आईपी या फिर यूआरएल्स को एक्सेस करेगा, youtube.com सर्च करेगा, तो उसे ट्रैफिक ब्लॉक दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक आपके जाके हम्म हिट हो रहा है किसको, फायरवॉल को, एंड फायरवॉल के अंदर आपने रूल लेवल डिसाइड को किया है कि यूट्यूब को बंद करना है हमें। लेकिन अगर नॉर्मल हम्म इंटरनेट की बात करूं, हमारी मोबाइल तक जो इंटरनेट आती है, कहीं पे फायरवॉल लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है। सो देयर इज नहीं नो ये रूल फॉर पब्लिक वाला वन। है हाँ, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट हम्म है। ऑफ कोर्स प्राइवेट जैसा नाम ही बता हम्म रहा है, सिक्योर है। पब्लिक जैसा नाम कह रहा है, मैं हम्म अनसिक्योर हूँ। ठीक समझ गए, हम्म प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, फिर इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। Internet is हम्म nothing but it is a global network, it is public network. But whenever we are talking about internet, हम्म this is the private network which more secure. That's it. दो ही लाइन बोलो,
इंटरनेट क्या होता है, दिस इज द ग्लोबल नेटवर्क विच अनसिक्योर, और दिस इज कॉल्ड ग्लोबल नेटवर्क और ऑल्सो नोन एज पब्लिक नेटवर्क विच इज एक्सेस बाय एनीवन। कोई भी बंदा अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वो इंटरनेट चला सकता है। हम्म। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है, क्या आप होंडा के पोर्टल आपके लैपटॉप में चला सकते हो? नहीं चला सकते। उसको चलाने के लिए आपको नहीं। राइट्स चाहिए, आपको परमिशन चाहिए। यू शुड बी अ वैलिड पर्सन, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस योर कंपनी पोर्टल्स और यूआरएल्स, राइट? सो राइट। इंटरनेट को जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट को चलाने के लिए आपको कोई कहीं से आपको वो नहीं चाहिए, ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। आपके पास डेटा पैक है तो आप हम्म। इंटरनेट चलाओ। इसको चलाने के लिए किसी के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा चला सकता है। लेकिन इंट्रानेट की अगर बात करूं, हम्म। दिस नेटवर्क हैव ऑथेंटिकेशन, दिस इंटरनेट हैव ऑथराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पॉलिसी बनते हैं, रूल बनते हैं, कौन बंदा चला पाएगा, कौन सी सर्विस चला पाएगा, सो दैट इट इज मोर सिक्योर एंड मोर सेफ। हम्म। समझ करेक्ट। गए? तो व्हाट इज हम्म। इंट्रानेट एंड व्हाट इज इंटरनेट? Internet basically use anybody like public network, and it is as compared to internet, it is less secure. Or internet, it is private network. It is more secure. या Mostly used in organization in intranet. राइट, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट अगर सही टर्म में मैं आपको बताऊं, इंटरनेट इज नथिंग बट दिस इज ए ग्लोबल नेटवर्क। अगर पॉइंट्स बताऊं, दिस इज ए ग्लोबल नेटवर्क, Hmm. नॉट सिक्योर, नॉट लेस सिक्योर, दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज जीरो सिक्योर, 0% सिक्योर, नॉट सिक्योर, Not secure. एक्सेस बाय एनीवन, कोई भी बंदा इसको Hmm. एक्सेस कर सकता है। ओके, इसके अंदर बात अगर करूं, दिस इज प्राइवेट नेटवर्क, मोर सिक्योर। More secure. Why more secure? Because we define rule and regulation. Access Hmm. only, authorize user only, Authorized person. person और Authorized user user. only। ओके, जैसे आप डेटा सेंटर इंजीनियर हो, तो आपके पास कुछ परमिशन होंगे, आप कहाँ तक चला सकते हो उस कंपनी के नेटवर्क को, ठीक है? और एज ए दूसरा कोई Hmm. एक बंदा है नेटवर्क इंजीनियर, उसके पास नेटवर्क की राइट्स होंगे। सो हियर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी बना हुआ है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है। लेकिन वही Hmm. अनट्रस्ट Hmm. ट्रैफिक, इसको इसको क्या कहा जाता है, अनट्रस्ट ट्रैफिक। मतलब यहाँ से जो ट्रैफिक आता है, इसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, वायरस हो सकता है, अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। लेकिन वही सेम इंटरनेट जब मेरी Hmm. कंपनी में आती है, वो सिक्योर हो जाता है। कैसे सिक्योर हो Hmm. जाता है? क्योंकि मैंने मल्टीपल सिक्योरिटी डिवाइस लगा रखा है, मे भी वो फायरवॉल हो सकता है, मे भी वो राउटर हो सकता है, मे भी वो स्विच हो सकता है, कहीं पे भी मैं सिक्योरिटी पॉलिसी लगा सकता हूँ। या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी लगाने के लिए मैं Hmm. डेडिकेटेड डिवाइस भी लगा सकता हूँ। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? Hmm. मतलब मैं ये कहना चाहता हम्म। हूँ, वही सेम डेडिकेटेड चीज। डेडिकेटेड जो डिवाइस रहता है, वो मतलब जैसे कि फायरवॉल के सिवा और क्या क्या जैसे हो आपकी सकता है, नैक जैसे है, कि नैक, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोलर। इसका सिंपल क्या काम नेट। है, हम। नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। दूसरी एक चीज होती है जेट स्केलर, तीसरी चीज है हमारी ट्रेलिंग। कंपनी में तो यूज किया यस, गया है ये ये। सारे हैं बेसिकली एंड पॉइंट ट्रेंड्स में। सिक्योरिटी, नेटवर्क को सिक्योरिटी देने के काम ही करते हैं ये सारे, ठीक है? नेट के अंदर आप रूल बना सकते हो, अगर मेरे नेटवर्क को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस करे तो बंद कर दो उस स्विच को, उस पोर्ट को बंद कर दो, उस यूजर को ब्लॉक कर दो। तो यू कैन डिसाइड मोर देन मोर एंड मोर। अगेन यू हैव एचडी1, ठीक है? हम्म। एचडी1 के अंदर आप रूल लगा सकते हो कि मेरी जितने भी वन की ट्रैफिक है उसको किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, वो भी आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। समझ गया? जैसे कि यहाँ पे तो फायरवॉल तो हम लोग इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। तो जेटस्केल और ट्रेलिक्स हम लोग क्यों यूज करें फिर? देखो, तो ये तो मतलब सिक्योर पर्पस के लिए तो मैं फायरवॉल है ना बताता हमारे हूँ, पास। ये आपके पास हुआ फायरवॉल, ये हम्म। आपके पास हुआ फायरवॉल। फायरवॉल से आपकी कनेक्टेड क्या है, हम्म। सिस्टम, एंड यूजर आपकी कनेक्टेड, ओके? हम्म। और यहाँ पे आपकी है आईएसपी, हम्म। आईएसपी से आपने एक लिंक लिया है, उसे आपने फायरवॉल से कनेक्ट कर दिया, और इस फायरवॉल से स्विच कनेक्ट है, हम्म। स्विच से आपकी यूजर कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम्म। कोई भी अनट्रस्ट हम्म। ट्रैफिक आता है ना, पहले वो हिट करेगा किसको, फायरवॉल को। फायरवॉल के अंदर फायरवॉल आपने को। रूल बनाया है,
वो रूल अगर अलाउ है, जैसे यहाँ से कोई यूजर एक्सेस कर रहा है youtube.com को, सो youtube.com, ये जो हम्म। रिक्वेस्ट पहले जाएगा किसके पास, फायरवॉल के पास। फायरवॉल चेक करेगा क्या मेरे हम्म। अंदर youtube.com अलाउ हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर हो रखी है तो वो ट्रैफिक को आगे भेज ओहो। देगा, अगर नहीं हो रखी है तो वहीं पे हम्म। ड्रॉप कर देगा। राइट, समझ गया। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद ये तो होती है नॉर्मल, कैसे हम काम करते हैं नॉर्मल एनवायरनमेंट में। अगर थोड़ी सी इसी सेम चीज को हम्म। आप बड़ी एनवायरनमेंट में बात करोगे ना, जैसे आपने कहा मेरी कंपनी में तो ऑलरेडी फायरवॉल लगा हुआ है, देन व्हाई वी आर यूजिंग ट्रिलिक्स, मैं ट्रिलिक्स क्यों यूज करूँ। राइट, यही था ना आपका क्वेश्चन। राइट। हाँ, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिनेरियो ऐसे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप की नेटवर्क है, एक तो है प्रोडक्शन नेटवर्क, दूसरा है मैनेजमेंट नेटवर्क। मैनेजमेंट नेटवर्क जिसमें आप सब लोग बैठते हो, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट नेटवर्क। प्रोडक्शन नेटवर्क जहाँ पे होंडा हम्म। की गाड़ियां बनते हैं, एंड होंडा की जो हम्म। गाड़ियां बनते हैं ना, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन नेटवर्क। और प्रोडक्शन नेटवर्क कनेक्टेड है आपके फायरवॉल से। ठीक है। ओहो। आपने हम्म। आपकी कंपनी के अंदर नाम सुना होगा एमपीएलएस लिंक। हम्म। ठीक है। सो होंडा के हम्म। अंदर जितने भी प्रोडक्शन लाइन के सिस्टम चल रहे हैं ना, वो एमपीएलएस लिंक की मदद से चल रहे हैं, और फायरवॉल से उनकी पॉलिसी चेक होती है। ठीक है। और आप जाके आपकी हम्म। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को पूछना, आपकी जो दोबारा लाइन दोबारा है। दोबारा सॉरी सॉरी दोबारा। देखो, मैं आपको थोड़ी सी अच्छे से बता देता हूँ। आपकी कंपनी के अंदर क्या हुआ है, ये फायरवॉल लगा हुआ है आपकी कंपनी के अंदर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर इज अ पालो अल्टो फायरवॉल, राइट। सो आपकी कंपनी के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है क्या, फायरवॉल। इस टर्म को अच्छे से समझना, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी एनवायरनमेंट समझने के लिए। आर यू ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी। हेलो। आपकी ना आवाज एक्चुअली ब्रेक हो रही है, एक बार आप रिफ्रेश करो आपकी टैब को। आवाज आ रही है अभी मेरी, आ रही है, समझाऊं। हेलो। हेलो। चलो स्टार्ट। यस 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 यस। ओके। सो ये आपके कंपनी के हेलो। अंदर पालो अल्टो की एक फायरवॉल लगा हुआ है। ठीक है, आवाज आ रही है, आपकी कंपनी के अंदर ये यस। एक पालो अल्टो फायरवॉल लगा हुआ है। सो आपकी कंपनी के अंदर क्या हुआ है सिनेरियो, जितने आपने मुझे बताया था, जितना मैंने समझा था, ये एक लिंक आई है व्हिच इज फ्रॉम टीटीएसएल, हम्म। दूसरी एक लिंक आई है हम्म। व्हिच इज फ्रॉम सिसोल, यस यस। एंड दिस टू लिंक्स आर आईआईएल लिंक। हम आगे पढ़ेंगे हम्म। आईआईएल लिंक होता क्या है, जब इन डेप्थ जाएंगे वहां पे समझेंगे। ठीक है। और आपके पास हम्म। दो लिंक आए हुए हैं व्हिच आर फॉर एमपीएलएस लिंक। ओके, व्हिच आर एयरटेल एंड जियो, राइट। सो ये सारे जो डिवाइस, हम्म। ये जो सारे लिंक्स है ना, ये आपके पीए से कनेक्टेड नहीं है, पालो अल्टो से कनेक्टेड नहीं है। जो आपकी टीटीएसएल है वो एसडी1 से हम्म। कनेक्टेड है, एंड सिसोल भी आपकी हम्म। एसडी1 से ही कनेक्टेड है। दीज आर एसडी1। हम्म। एंड जो एयरटेल और जियो की राउटर से, ये सारे राउटर से कनेक्टेड है। R1, हियर इज राउटर 2। मतलब दोनों एमपीएलएस हम्म। लिंक आपके राउटर से कनेक्टेड है, दोनों आईएएल लिंक हम्म। आपके एसडी1 से कनेक्टेड है। यानी हियर इट इज योर कोर हम्म। स्विच, this is your Cisco core switch, both links are connected to this core switch। ठीक है। ओके। ये तो हो गया आपके WAN सेगमेंट। अभी LAN सेगमेंट पे आपके यहाँ पे लगा हुआ है कोर स्विच के साथ ही पीए लगा हुआ है, पालो उल्टो लगा हुआ है। ठीक है। सो हम्म। पालो अल्टो के अंदर यहाँ पे जो रूल बना है ना, वो रूल कैसे काम करता है कि कोई भी लाइन साइड, तो आपके पास यहाँ पे दो टाइप की नेटवर्क है, एक है प्रोडक्शन नेटवर्क जिसके अंदर गाड़ियां बनते हैं। ठीक है। दूसरी हम्म। नेटवर्क है मैनेजमेंट नेटवर्क, जिसके अंदर आपके नेटवर्क इंजीनियर, आप यूजर, परचेस टीम, सेल्स टीम, एचआर टीम बैठते हैं। वो कहाँ पे बैठते हैं, मैनेजमेंट नेटवर्क में बैठते हैं, यस। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम्म। गाड़ियां जहाँ पे बनते हैं।
ठीक है। और आप जाके एक चीज जरूर पूछना, आपकी हम्म जो हेल्प हम्म इंजीनियर है ना उन्हें जाके पूछना, आपकी जो प्रोडक्शन नेटवर्क है ना वहाँ पे वर्क ग्रुप के सिस्टम यूज होते हैं, और आपके जो हम्म मैनेजमेंट के नेटवर्क है वहाँ पे डोमेन सिस्टम यूज होते हैं। हम्म ठीक है। तो अभी क्या है हम्म सिनारियो, जितने भी ये प्रोडक्शन सिस्टम है ना वो पालो अल्टो से कम्युनिकेट करते हैं, उनकी जो पैकेट फिल्ट्रेशन होती है उसकी जो पॉलिसी चेक होती है वो पालो अल्टो चेक करता है। फिर पालो अल्टो चेक करने के हम्म बाद वो हो जाती है कोर स्विच, फिर कोर स्विच से एमपीएलएस लिंक की मदद से वो दूसरी लिंक वो जाते हैं दूसरी फैक्ट्री के पास, मे बी 1F जा सकता है, मे बी 4F जा सकता है। समझ गए? तो हम्म आपकी प्रोडक्शन लाइन के जितने भी सिस्टम है वो सारे पालो अल्टो से कम्युनिकेट करते हैं, हम्म और फिल्टर भी कैसे होते हैं, पालो अल्टो से। लेकिन आपकी जो हम्म डोमेन की सिस्टम है ये पालो अल्टो से चेक नहीं होते, इनके हम्म लिए पालो अल्टो कोई रूल नहीं है इसके अंदर। इसके लिए आपके अंदर किसने रूल बनाई है, वो उसने बनाई है, नैक ने बनाई है, जेटस्केलर ने बनाया है, ट्रिलिक्स ने बनाया है। हम्म ठीक है। सो पालो अल्टो क्या करता है आपकी हम्म एनवायरनमेंट में, आपकी एनवायरनमेंट में पालो अल्टो बस प्रोडक्शन लाइन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि होंडा एज ए प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, और उसकी होंडा के लिए सबसे बड़ी जो चीज है उसकी प्रोडक्शन लाइन ही है जहाँ पे गाड़ियां बनता है। अगर वो लाइन खराब हो गया, वहां पे कुछ वायरस इन्फेक्ट हो गया, देन होंडा गोज डाउन एंड डाउन। So for that particular region, Honda deploy a Palo हम्म Alto in between production system and internet and production नेटवर्क सिस्टम के बीच उन्होंने पालो अल्टो को लगाया फॉर मोर सिक्योरिटी। बट सेम टाइम में अगर डोमेन सिस्टम की बात करूं, वहां पे उन्होंने पालो अल्टो फायरवॉल से पैकेट को बाईपास करके नैक से, जेडस्केलर से, हम्म ट्रिलिक्स से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, जो कि होती है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड हम्म, पॉइंट सिक्योरिटी आगे देखेंगे क्या होता है। समझ गए? आपके एनवायरमेंट ठीक है। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज आ गया कैसे काम करता है? तो ये मतलब मैनेजमेंट नहीं जा रहा है पालो अल्टो पे, नहीं, वो डायरेक्ट आपकी जो बाईपास होके ये पे राइट राइट, आपकी जो मैनेजमेंट ट्रैफिक है वो पालो अल्टो नहीं जा रहा, वो जा रहा है नैक में। नैक से फिल्टर होता है या फिर जेट नैक स्कैनर जैसे से कि फिल्टर होता है। क्या चीज? जैसे कि ये कोर्स है डायरेक्ट ये आता है मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट वो फिल्टर आउट करता है, जैसे कि जेट्स कलर हो गया, ट्रिलिक्स हो गया, बिल्कुल ऐसे है ना, जैसे कि अपने बिल्कुल बताए। ऐसा ही है। ऐसा ही है। प्रोडक्शन मतलब जो कंपनी, हाँ, वो एयरटेल जो भी सिस्टम एयरटेल प्रोडक्शन और है, जियो आया, जियो आया। जो भी आपकी प्रोडक्शन राउटर सिस्टम राउटर है वो से पहले, कोर से जो भी आया, आपकी देन हमारा। प्रोडक्शन सिस्टम है ना, लेट मी टेल फर्स्ट। जो हम्म भी आपकी प्रोडक्शन सिस्टम है ना उसकी फास्ट ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी, पालो अल्टो पे जाएगी, पालो अल्टो पे रूल चेक होगा, फिर वो कोर स्विच पे जाएगी, कोर स्विच से फिर ट्रैफिक जाएगी एमपीएलएस राउटर पे, फिर राउटर से आगे चले जाएगा, राइट। लेकिन मैनेजमेंट की, लेट्स से हम्म आपके पास, आप डीसीओ हो, आपके पास एक लैपटॉप होगा, उस लैपटॉप से अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो ट्रैफिक पहले जाएगी आपकी नैक की हम्म सर्वर में या फिर जेटस्केलर की सर्वर में। वहां से वो चेक करेगा जो आप एक्सेस हम्म कर रहे हो वो सही है या गलत है, फिर ट्रैफिक जाएगी आपकी कोर स्विच पे, फिर कोर स्विच से होते हुए एसडी1 पे जाएगी, फिर एसडी1 से आगे चले जाएगा। ओहो गॉट इट। गॉट इट? ठीक है। ओके। सो हम पढ़ क्या रहे थे पहले, लास्ट में हम लास्ट में पढ़ रहे थे व्हाट इज और छोटी सी इंटरनेट। मतलब वहां पे एक query था, और एक था डोमेन और वर्क ग्रुप, यस। एक था वहां पर, जो हाँ। आपकी जो आपके प्रोडक्शन सिस्टम हम्म होगा ना, जो लाइन पे लगे होंगे, जो आपको लाइन बोलते हो ना जिसपे जहाँ पे गाड़ियां बनते हैं, हम्म वहां पे जितने भी हम्म डेस्कटॉप कंप्यूटर लगे होंगे वो वर्क ग्रुप के कंप्यूटर होंगे, उसके अंदर डोमेन कॉन्फ़िगर नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। और ये जाके आप जरूर ठीक पूछना, है। लाइन साइड में आपके वर्क ग्रुप की हम्म सिस्टम यूज हो रहे होंगे, और आपकी जो मैनेजमेंट जो आप लोग यूज करते हो वो डोमेन की सिस्टम होंगे। हम्म ठीक है। आगे चले वर्क फिर। ग्रुप और डोमेन पे मतलब डिफरेंट, मेनली मेनली मतलब डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि वर्क ग्रुप पे देखो वो बता देता हूँ थोड़ा आज, तो मतलब होगा, वो तो हालांकि पता चल हालांकि गया, हाँ। हालांकि टॉपिक आपकी था हम्म आगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। हम्म देखो जब कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करते हैं ना, वहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो आती है डोमेन, एक तो आती है वार ग्रुप। अभी आप जो लैपटॉप चला रहे हो वो वार ग्रुप लैपटॉप है या फिर डोमेन लैपटॉप है? वर्क ग्रुप। अभी अभी जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो कभी भी आप कंपनी से लैपटॉप खरीदते हो ना, बाय डिफॉल्ट वो वार ग्रुप में रहता है। हम्म ठीक है।
बाय डिफॉल्ट अगर चेक करना है आपको तो मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कैसे आप चेक करोगे। सिंपली आप जाओ दिस पीसी में, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दिखा देगा। देखो यहाँ पे आपका नाम दिया है राजेश राव, जैसे मेरी कंपनी का मेरी नाम है राजेश राव, तो यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है ना डोमेन वारो वार ग्रुप, तो ये अभी मेरी डोमेन में हम्म। कनेक्ट नहीं है। अगर डोमेन में होता यहाँ पे मुझे दिखा देता नेटवर्क और डॉट इन या फिर कुछ डॉट इन यहाँ पे मुझे दिखा देता। ठीक है, अगर एडवांस में जाऊंगा, लेट मी चेक, यहाँ पे आपको दिखाएगा अभी वार ग्रुप का है। तो अगर आपको याद नहीं है then you can go to Google to check। जैसे यहाँ पे मैं अबाउट में गया ना, तो ये सारी चीजें मुझे दे रही है। हम्म। ओके, देखो यहीं पे था, हमने बेसिकली ज्यादा ढूंढ लिया। अब जैसे तुम जाओगे ना सिस्टम में अपनी, लेट्स से मैं आपको पहले और एक बार दिखा रहा हूँ, ये आपकी दिस पीस दिखेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे आप, प्रॉपर्टीज में जाओगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाओगे आपकी एक प्रॉम्प्ट आ जाएगी, इसके अंदर आपके डिवाइस की स्पेसिफिकेशन दे रहा है, राम कितना है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक मिल जाएगा डोमेन और वार ग्रुप, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो दिखा रहा है वार ग्रुप। सिस्टम का नाम क्या है, राजेश है। हम्म। और वार ग्रुप क्या है, सिस्टम टाइप क्या है, मेरी वार ग्रुप है। क्लियर। हम्म। और अगर ये डोमेन होता है, यहाँ पे हम्म। आपकी डोमेन की नाम होता है, जैसे नेटवर्क डॉट इन, होंडा डॉट इन, कुछ भी हो सकता है आपके डोमेन। अभी हम पहले जिस टॉपिक में थे उससे देखते हैं डोमेन क्या है। जितने भी नया सिस्टम है ना, आप चाहो तो अपने लैपटॉप में भी ट्राई करना, आपको वार ग्रुप दिखेगा। वार ग्रुप क्या होता है, हम्म। जितने भी हम नया लैपटॉप खरीदते हैं या फिर पुराने लैपटॉप किसी से खरीदते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट किस में रहते हैं, वार ग्रुप में। ठीक है। हम्म। लेकिन जो कंपनी रहती है, कंपनी के अंदर वो वार ग्रुप से हटा के, इसीलिए डेस्कटॉप हम्म। सपोर्ट यही काम करता है, वो वार ग्रुप से हम्म। सिस्टम को हटा के डोमेन में डाल देते हैं। जैसे कि डॉट इन डॉट कॉम हाँ, ऐसा। कुछ भी हो सकता है, वो तो खरीदते हैं वो, हम्म। या फिर खुद का बना हम्म। सकते हैं। तो वार ग्रुप से हटा के हम्म। डोमेन में बेसिकली डाल देते हैं नेटवर्क कंपनी में। क्यों? देखो वार ग्रुप जो हम्म। होता है ना, वो एक स्टैंड एलोन सिस्टम होता है। स्टैंड एलोन इन द सेंस, ये आपकी सिस्टम है, इसके अंदर कुछ भी अगर मुझे अपडेट करनी है, कुछ भी चेंजेस करनी है, तो मैं इसी के अंदर करूंगा। क्यों? कौन सी सिस्टम है आपकी, ये आपकी वार ग्रुप की सिस्टम है, राइट। हम्म। अगर आपकी लैपटॉप हम्म। के अंदर मुझे कुछ करना है, तो आपके लैपटॉप में लूंगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करूंगा। लेट्स से वॉलपेपर चेंज करनी है,
कुछ नया पॉलिसी लगानी है आपके लैपटॉप के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोल प्लेन होता है ना, वो इसी लैपटॉप के अंदर ही रहता है। जो कंट्रोल फाइल रहता है ना, ये इसी लैपटॉप के अंदर रहता है। वर्क ग्रुप के अंदर। हाँ। और इस लैपटॉप को जब ठीक भी है। आप लैपटॉप की पासवर्ड आप खोलते हो, नॉर्मल आपकी लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप अपने लैपटॉप की पासवर्ड खोलते हो ना, पासवर्ड एंटर किया, हम्म एंटर आपने दबाया, तो ये जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यही खुद सिस्टम ही कर देता है अपने आप। हम्म। ठीक है। वही सेम टाइम में वारग्रुप की अगर बात करूं, मुझे अगर वारग्रुप लैपटॉप के अंदर डोमेन लैपटॉप की अगर बात करूं या फिर डोमेन सिस्टम की बात करूं, इसके अंदर अगर मुझे कुछ रूल लगानी है, इसकी वॉलपेपर चेंज करनी है या फिर कुछ पॉलिसी लगानी है, मैं इसको एक सर्वर से कनेक्ट करके उस सर्वर में मैं वो कमांड डाल दूंगा, यहाँ से वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, जिसे हम करते हैं ना जीपी अपडेट। ये फोर्सफुली जीपी अपडेट होता है हाँ, सक्सेसफुली, ये हाँ। जीपी अपडेट कुछ नहीं है, बेसिकली हम अपनी एडी सर्वर से या फिर हमारे डोमेन सर्वर से सारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर लेटेस्ट पॉलिसी है उसे फेच करते हैं। हालांकि डोमेन और वर्कग्रुप के ऊपर पूरी एक सेशन हमारी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे से बता देता हूँ। देखो, जैसे आपके पास अभी क्या है, अभी आपके पास कैसे बताऊँ, जैसे आपके पास अभी आपकी लैपटॉप है ये, ठीक है। हम्म। अभी कोई वार ग्रुप नहीं है, कुछ डोमेन नहीं है, आप भूल जाओ डोमेन वगैरह। आपकी लैपटॉप है ये बाय ठीक। डिफॉल्ट किसमें है? बाय डिफॉल्ट वार ग्रुप में है, हम्म राइट। इस लैपटॉप के अंदर हम्म। कुछ भी चेंज करना है आपको, लेट्स से वॉलपेपर चेंज करना है, तो आप ही चेंज करोगे खुद, डाउनलोड करोगे माउस में राइट क्लिक करके सेव एज वॉलपेपर डिस्प्ले आ करोगे। जाएगा, हाँ। यस, यस। वॉलपेपर आ अगर जाएगा, वहाँ उस पे सेटिंग कर सकते हैं। यस, अगर आपके लैपटॉप में आपको माउस वो यूएसबी ब्लॉक करनी है, तो आप जाओगे उसकी हम्म जीपी अपडेट, ये उसकी एमएस इन्फो में जाओगे, उसकी यूएसबी हम्म पोर्ट को ब्लॉक कर दोगे। अगर आपको आपके हम्म लैपटॉप के अंदर कुछ वेबसाइट को बंद करनी है, तो आप सिंपली, अगर आपके पास एंटीवायरस है उससे कर सकते हो, अगर एंटीवायरस नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर में जाकर वहां पे रूल बना सकते हो, राइट। ये हम्म। है नॉर्मल वर्क ग्रुप के लिए। अगर वही सेम चीज मैं कहूँ डोमेन के लिए, डोमेन से हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, इसमें मैं कर रहा हूँ सब कुछ, लेट से अगर सिंपल सी एक एग्जांपल दूं आपको ना, लेट से आपके पास दो सिस्टम है, आपके पास ये दो हम्म लैपटॉप है। आपको मैंने कहा इस दो लैपटॉप की आप वॉलपेपर चेंज कर दो, विच इज इजी फॉर यू। आपने क्या किया, डाउनलोड कर दिया इंटरनेट से वॉलपेपर को एंड सेट कर दिया, हम्म। राइट। वही सेम टाइम में मैं कह रहा हूँ 10,000 लैपटॉप की वॉलपेपर मुझे चेंज करके दो, इज इट पॉसिबल? नहीं। आप नहीं कर सकते, दिस इज वेरी लेंदी प्रोसेस। सो इसीलिए हमने हम्म क्या किया, जैसे हमारे पास एक टॉपिक था ना, पहले हम आईपी देते थे स्टैटिक, लेकिन एक दो हम्म सिस्टम को मैं स्टैटिकली आईपी दे पा रहा था, लेकिन मेरे पास लगभग 10,000 सिस्टम है। अब सबको तो मैं हम्म स्टैटिकली आईपी दे नहीं सकता एक एक करके, उसमें इशू आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इसीलिए मैंने डीएससीपी बनाया। यस। डीएससीपी में मैंने रूल बना दिया। अभी सारे आई सिस्टम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे डीएससीपी से आईपी उठा लेंगे, सो लाइक दैट डोमेन हमने एक सर्वर बना दिया, डोमेन सर्वर, ठीक है। अभी सारे सिस्टम को मैंने हम्म इनके डोमेन के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी डोमेन में मैं जो रूल बनाऊंगा, ये सारे सिस्टम में वही सेम रूल अप्लाई हो जाएंगे एट ए टाइम। मुझे हर एक सिस्टम हम्म। के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस वो सेम नेटवर्क में होने चाहिए सब। प्राइवेट नेट, जैसे होंडा की नेटवर्क है आपकी, आपकी होंडा की नेटवर्क में होना चाहिए, जैसे ही आपके होंडा की नेटवर्क में आपका कंप्यूटर आएगा, वो अपडेट हो जाएगा किससे, डोमेन से। ये डोमेन सर्वर कहाँ पे है अभी फिलहाल हमारे डोमेन प्लांट सर्वर, के लिए? डोमेन सर्वर आपके डेटा सेंटर में होगा, जिसको आप कहते हो एडी सर्वर, हम्म ठीक है। एडी सर्वर इज नथिंग बट योर एक्टिव डायरेक्टरी, जिसे हम कहते हैं, वो डोमेन सर्वर ही है। हम्म। ओहो। और आपके प्लांट, वो हर तो एक ये प्लांट टोटल जैसे डोमेन, क्या हाँ, चीज? ये डोमेन सिस्टम को टोटल मैनेज करता है एडी, एडी के थ्रू यस, चेंजेस वगैरह यस, एडी के डोमेन। थ्रू ही आप सब कुछ तो करते हो। हाँ। बिल्कुल क्लियर होगा ना, हालांकि जैसे कि वर्कग्रुप और डोमेन के लिए हम आगे अ, से पढ़ेंगे इसको अच्छे से, अभी जितना समझाया होगा क्लियर। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके, ठीक ठीक। अभी मुझे बताओ दो चीजें, डोमेन में क्या फायदा है और वर्कग्रुप में क्या फायदा नहीं है। वर्क ग्रुप में ये तो नॉन सिक्योर हो मतलब है, क्योंकि राइट, आपने सही यूजर वर्ड की किया, मतलब नॉन जो सिक्योर। थोड़ा अभी पर्सन। कैसी नॉन वर्कग्रुप सिस्टम कैसा अनसिक्योर कैसे है? वर्क ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन यूजर आके वहाँ पे, अगर वहाँ पॉलिसी वगैरह हम लोग नहीं लगाएंगे, तो हम्म, वहाँ पे डाटा लॉसेस होने की बहुत चांसेस है उसमें। ओके। देखो, जो और वर्कग्रुप डोमेन पे सिस्टम अगर होता है ना, जो वर्कग्रुप सिस्टम हम्म होता है ना, वो होता है सिस्टम बेस्ड ऑथेंटिकेशन।
ओके, आपने पासवर्ड डाला, वो सिस्टम से ही ऑथेंटिकेट हो जाएगा। सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो खुद ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेगा, हाँ ये पासवर्ड सही दे रहा है, मैं खोल दूंगा अभी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। लेकिन जो आपकी हम्म डोमेन वाली सिस्टम होती है, जैसे आपने पासवर्ड डाला, वो अपनी एडी सर्वर के पास जाएगा, हम्म जाकर वहां से पासवर्ड को चेक हम्म करेगा, ये जो यूजर डाल रहा है पासवर्ड सही है नहीं है, मुझे बताओ, अगर सही है तो मैं खोल दूंगा, वरना मना कर दूंगा। समझ हम्म। गए? हालांकि बहुत ये सारे चीजें सिस्टम होते हैं, मतलब दोनों में कैसे बहुत सारे डेटा होते हैं। क्या चीज हम्म। कह रहे हो? इसका मैक एड्रेस वहां पे शायद वहां ऐड होगा, तो इसे वेरीफाई कैसे करेगा वो डेमो, मतलब डोमेन सिस्टम की पासवर्ड है या नहीं? देखो मैं बता रहा हूँ, ये आपकी डोमेन सर्वर है। लेट्स से दिस इज योर इन हाउस सर्वर, आपने अपने हम्म डेटा सेंटर में सर्वर लगा रखा है, इस डोमेन का नाम है लेट्स से net.com। ठीक है, यहाँ से आपने हम्म कंप्यूटर को कनेक्ट किया, इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया, इसको वार्गरूप प्रोफाइल हटा के आपने डाल दिया net.com। ठीक है, सो अभी ये पूरी हम्म कम्युनिकेशन किससे करेगा, इस डोमेन से हम्म करेगा, इस डोमेन सर्वर से, अपने इस सर्वर से वो कम्युनिकेशन भी करेगा। ओके, कुछ भी चीजें होगा, वो सर्वर के हम्म पास जाएगा, पहले पहले जाएगा वो सर्वर के पास, फिर आएगा वो अपनी हम्म। सिस्टम के पास। ओके, और आपने कहा कैसे आइडेंटिफाई ओहो। करता है, वो आइडेंटिफाई करता है बाय द हेल्प ऑफ होस्ट हम्म नेम। आपकी कंपनी में होस्ट नेम क्रिएट करने के लिए बोल रहा होगा आपको कोई, हम्म एज ए डाटा सेंटर आपको, कि होस्ट नेम क्रिएट करने के लिए मैंने हम्म एसआर हम्म डाली, एसडीआर डाली। हम्म तो एडी सर्वर होस्ट नेम की मदद से आपकी हम्म सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है। वो पूरी प्रोसेस हम्म। कैसी है वो आगे जानेंगे, बस फिलहाल के लिए इतना जानो, वारग्रुप सिस्टम ठीक। लेस सिक्योर होता है, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, क्योंकि ये अपने आप में ही ये कंप्यूटर है, अपने आप में ही सर्वर है, ये अपने आप ही सब कुछ कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम्म सब कुछ करने के लिए ये एक डेडिकेटेड सर्वर बैठाया है मैंने, ये सब कुछ करेगा, ये बस एंड यूजर को प्रोवाइड करेगा डेटा, लेकिन डेटा बनाएगा, मेंटेन करेगा, सिक्योरिटी ये सब सर्वर करेगा। ओहो। क्लियर? ठीक है ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये अभी पहले तो आइडिया आया, तो मोस्टली हम लोग जो नया सिस्टम परचेस वो वर्क ग्रुप पे रहता है, और जो सिस्टम को दिया जा रहा है जो हेल्प डेस्क के, उसको वर्क ग्रुप पे डाल के नंबर देते हैं यूजर को, उसके बाद बिल्कुल। वो आता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी बिस्मिल जी। ठीक। समझ गया मैं। बिल्कुल क्लियर हो ना, हो वार्गरूप गया क्या ठीक होती है। है, डोमेन क्या होती है, मतलब बेसिक तो हाँ हाँ क्लियर हाँ। हो ही गया होगा आज। हम्म। ओके। अब बेसिक बेसिक क्लियर हो गया। ओके, so for today we are running out of time, it's 11 9:11। okay, so ओके today we are ओके ओके concluding ओके this ओके class, tomorrow we will meet at 7 ओके p.m। okay, ओके। thank you for today's session and joining today session। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू।